So the today's topic for the discussion is breast or the mammary gland. So the mammary gland is a modified sweat gland of the apocrine variety, which is situated in the superficial fascia of the pectoral region. For the study purpose, we can divide the breast into four quadrants. So from the superior lateral part, there is a small extension of the breast, pierce the deep fascia and extend in the axilla. That is called the axillary tail of the spans. The opening of this axillary tail of the spans is called the foramen of Langer. Breasts are supported by the suspensory ligament or the ligament of the Cooper. These are the strong fibrous attachment then runs from the dermis of the skin to the deep layer of the superficial fascia, also called the pectoralis fascia, running through the breast. Now comes to discuss about the extent of this breast. So as I told you that the breast lies in the superficial fascia of the anterior chest wall. हमने पेक्टोरल रीजन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे दो मसल्स होती है जो आपके चेस्ट वॉल पेक्टोरल गर्डल को कनेक्ट करती है. दीज मसल्स आर पेक्टोरलिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल. हमने एक्जिला में पढ़ा था कि जो लेटरल थोरेसिक वॉल होती है विच इज कवर्ड बाय वन मसल दैट इज कॉल्ड द सेरेटस एंटीरियर मसल. ओके, सो दीज breast lies over the superficial fascia of the anterior chest wall, overlying the pectoralis major as well as the serratus anterior muscle. जब हम वर्टिकली एक्सटेंड की बात करते हैं तो वर्टिकली इट एक्सटेंड फ्रॉम दिस सेकंड रिब टू द सिक्स रिब्स. जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ऑन मीडियल साइड इट एक्सटेंड ऑन फ्रॉम द स्टर्नम, ऑन लेटरल साइड इट एक्सटेंड अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन. नाउ सरफेस लैंडमार्क की बात करते हैं तो द निप्पल लाइज एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. नाउ कम्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट. सो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, most posteriorly we have the clavicle. From the clavicle we have the subclavius muscle which is enclosed in the clavipectoral fascia. Then below we have the pectoralis minor muscle which is again enclosed in the clavipectoral fascia. Now below this clavipectoral fascia forms the floor of the axilla. Similarly, just anterior to the pectoralis minor and subclavius muscle we have the pectoralis major fascia which is covered by deep fascia that is also called the pectoral fascia. Above this pectoral fascia, there is a small space between the pectoralis fascia and the breast. This space is called the retromammary space. So this retromammary space is separate the breast from the pectoral fascia. It is filled by the loose areolar tissue and it allows the free movement of the breast over the underlying deep fascia. So जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो उसमें हम लिखेंगे द पेक्टोरलिस फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, external oblique muscle, loose areolar tissue which forms the retromammary space. Now comes to the structure of the breast. So the breast consists of mainly three components. These are the skin, stroma and the parenchyma, which is also called the proper mammary gland. Now discuss one by one. So the skin, it is consists of the nipple and areola. Nipple is a conical projection and it pierces by the 15 to 20 lactiferous ducts. Now comes to the areola. So areola क्या होता है? It is a circular pigmented area that surround the nipple. Now comes to the stroma जो कि important part है. So stroma means हो गया जो इसका framework बनाता है. So it is a supporting framework of the mammary gland. It consists of the fibrous tissue and the fat. Okay. So जो fibrous tissue होता है ये सेप्टा बनाते हैं जिनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर. इस डायग्राम में जो आपको ये ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही है, ग्रीन बार्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द लिगामेंट ऑफ कूपर. सो दीज लिगामेंट क्या करते हैं? ये सस्पेंड करते हैं द ब्रेस्ट टिश्यू फ्रॉम द क्लेविकल एंड द पेक्टोरलिस फेशिया एंड मेंटेन द नॉर्मल शेप ऑफ ब्रेस्ट. नाउ कम्स टू टॉक अबाउट द पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा बेसिकली क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू है इसका पूरा ब्रेस्ट का, which is made up by the this lactiferous ducts, lactiferous sinuses and open into the nipple. ठीक है, तो ये बनता है 15 to 20 lobes के थ्रू.
Now comes to the arterial supply. So the main artery of the breast is uh, internal thoracic artery, which is the branch of the first part of the subclavian artery. So the other arteries which also supply the breast, these are the branches of the axillary artery from all the three part of the axillary artery. So these are the superior thoracic artery, thoracoacromial artery, lateral thoracic artery, and the subscapular artery. Sometimes the posterior intercostal artery also supply the breast. Now comes to the venous return. So basically venous return एक कंपनी करता है द आर्ट जो आर्टरीज होती है सप्लाई करती है उसी को एक कंपनीज करता है. सो मेनली इसकी जो आर्टरी होगी वो एक्सिलरी वेन होगी जो ड्रेन करेगी थ्रू द लेटरल थोरेसिक वेन के थ्रू. तो वीनस रिटर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेटास्टैटिक सेल्स होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की कैसे जाती है ब्रेन तक जाने के लिए उसको रूट क्या चलता है. सो तो अगर कोई मेटास्टैटिक या कैंसर सेल्स होगी वो इंटरकॉस्टल वेन्स के अंदर एंटर करेगा. देन फ्रॉम द इंटरकॉस्टल वेन इट एंटर इनटू द एक्सटर्नल वर्टिबल वेनस प्लेक्सिस. फ्रॉम एयर इट एंटर इनटू द इंटरनल वर्टिबल वेनस प्लेक्सिस एंड फ्रॉम द इंटरनल vertebral venous plexus it may enter into the cranial dura sinuses. Now comes to the next heading would be the nerve supply. So anterior and lateral cutaneous branch of the second to sixth intercostal जो nerves होती है वो उसको इनर्वेट करती है. सो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज. सो लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. एक तो होता है सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, सेकेंड होता है हमारे पास डीप लिम्फेटिक्स. तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के लिए जो स्किन पूरा है ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट द निपल एंड एरियोला दे ऑल ड्रेन बाय द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स. वेयर एज द जो इसका प्रॉपर पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट है एंड along with the nipple and areola they drained by the deep lymphatics lymph nodes के थ्रू ड्रेन होते हैं. तो बेसिकली अगर हम इसमें लिखना चाहें पूरा तो उसका मोस्टली 75% पार्ट जो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करता है. रिमेनिंग 20% इनटू एंटीरियर थोरेसिक नोड्स के अंदर ड्रेन करता है एंड रिमेनिंग द 5% ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन करता है. सो ये डायग्राम आपको डिपिक्ट कर रहा है जो आपके सुपीरियर मीडियल एंड द सुपीरियर लेटरल पार्ट है ये ड्रेन करते हैं. सुपीरियर मीडियल पार्ट ड्रेन करेगा इंटर मेमोरी लिम्फ नोड्स. पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स होते हैं स्टर्नम के दोनों साइड में रहते हैं. वेयर एज द सुपीरियर लेटरल पार्ट मोस्टली दे ड्रेन इनटू द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड along with the inferior lateral part. Some lymphatic from the inferior lateral part drain into the posterior intercostal lymph nodes, whereas the most of the inferior medial part drain into the सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड. सो यहाँ पे सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स के थ्रू ये स्प्रेड आउट कर जाते हैं टू द लीवर टू द ओवरी. और अगर ओवरी तक चले जाते हैं तो एक ट्यूमर बनता है उसको बोलते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर. एक इसका क्लिनिकल में आप पढ़ सकते हैं. नाउ ये सेम चीज़ हमने डिस्कस किया अभी. तो लिम्फ फ्रॉम द सुपीरियर क्वाड्रेंट इट ड्रेन टू द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स. अगेन द सेम डायग्राम डिपिक्ट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मेमरी ग्लैंड. नाउ ये क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. ओके तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना होता. इसमें क्या होता है 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर सरफेस एक्टोडर्म पे दो थिकन स्ट्रिप शो करता है. उसको बोलते हैं प्रिमिटिव मेमरी रिच और द मिल्क लाइन. ये पूरा का पूरा एंटायर एक्टोडर्म पे सरफेस एक्टोडर्म पे शो करता है. लेकिन थोरेसिक पार्ट जो है वो इंटैक्ट रह जाता है बाकी डिसअपियर हो जाता है. तो मेमरी बर्ड्स अराइज होते हैं फ्रॉम द थोरेसिक पार्ट ऑफ द दिस मेमरी रिच. ओके और वो सराउंडिंग मीजोडर्म के अंदर ग्रो करते हैं. बाद में क्या होता है कि ये जो कॉर्ड्स होती हैं कैनालाइज्ड हो जाती हैं टू फॉर्म्स द लैक्टिफेरस डक्ट्स. वेयरएज द टर्मिनल जो पार्ट होता है वो बनाते हैं इसके सिक्रेटरी असाइनी. उसके सराउंडिंग जो मीजोडर्म होता है वो उसका बनाता है फाइब्रस स्ट्रोमा, सस्पेंसरी लिगामेंट और मायोएपिथेलियम सेल्स. दैट्स इट. तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. बस आपको जितना 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो भी आपको दिखाई दे रहा है बस उतना ही लिखना है. क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्यूडी ऑरेंज क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हो जाता है. सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स अभी हमने बताया आपको कि जो पूरा स्किन को ड्रेन करता है एक्सेप्ट द निपल इन द एरियोला. तो अगर लिम्फ सुपरफिशियल लिम्फ नोड के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है
तो वो लिम्फ इडीमा बना देता है ऑन द स्किन, और ऑरेंज कलर का स्किन स्किन हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्यूडी ऑरेंज। सेकेंड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पकरिंग ऑफ द स्किन ओवर द मेमरी ग्लैंड। सो ये क्यों होता है? ये कैंसर सेल्स जो होती है वो इन्फ्लेट कर जाती है द सस्पेंसरी लिगामेंट को, क्योंकि हमने अभी बताया सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो इसकी शेप को मेंटेन करता है। तो अगर उसके अंदर कैंसर सेल्स आ जाती हैं तो फिक्सेशन ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो पेक्टोरलिस फेशिया पे और टाइटली एडरेंट हो जाता है, तो दैट्स वाई रिट्रक्शन ऑफ पकरिंग ऑफ द स्किन हो जाता है। ओके, थर्ड ही है हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल। सो इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स बाय द कैंसर सेल लीड टू द fibrosis of the lactiferous ducts which cause retraction of the nipple. ओके, द सेकेंड है फिर हमारे पास कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर ब्रेस्ट। सो लिम्फेटिक्स में अभी हमने पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द सुपीरियोमीडियल पार्ट है और सम पार्ट ऑफ द इंफीरियोमीडियल पार्ट दे ड्रेन इनटू द पैरास्टर्नल लिम्फ नोड। सो एक साइड से दूसरी साइड के अंदर कम्युनिकेट करता है वो। क्रूकनबर्ग ट्यूमर अभी मैंने आपको बताया, जो इंफीरियो मीडियल पार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक में जाएगा, वहाँ से वो लीवर और ओवरी तक भी जा सकता है। तो ओवरी में अगर वो पहुंच जाता है तो सेकेंडरी ट्यूमर इन द ओवरी क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द क्रूकनबर्ग ट्यूमर। सो मेनली जो इसके अंदर है ब्रेस्ट एप्सिस, आपको इंसिजन्स पता होने चाहिए कि किस तरह के इंसिजन दिए जाते हैं। तो ब्रेस्ट एप्सिस अगर होता है तो हमारे पास रेडियल इंसिजन होता है, तो रेडियल इंसिजन के थ्रू हम इसको ड्रेन करेंगे टू अवॉइड द कटिंग अक्रॉस द लैक्टिफेरस डक्ट्स। ओके, थैंक यू।